और پھر کتنی دیر تک اس کا احسان لیتی، اسی لیے خاموشی سے بنا بتائے گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ خوفزدہ ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتی، اپنے لیے کوئی شیلٹر ہوم دیکھ رہی تھی جہاں وہ اپنی بچی کی پرورش کر سکتی۔ کہاں جا رہی ہو بلبل؟ کہو تو ہم گھر چھوڑ دیں۔ تین آوارہ لڑکے جو اس کے پاس سے گزر رہے تھے اس کو تنگ کرنے لگے۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اسے اس وقت گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، لیکن وہ کیا کرتی، اس کے علاوہ تو چارہ بھی کوئی نہیں تھا۔ دن کی روشنی میں میراب خانزادہ کو دھوکہ دے کر اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر گھر سے بھاگنا ناممکن تھا۔ اس وقت اسے اپنی بچی کی زندگی اور اپنی عزت خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ وہ جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی تبھی اندھا دھند بھاگنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کہاں ہے۔ وہ مسلسل بھاگ رہی تھی اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کا دھیان نہ گیا اور سامنے سے آنے والی کار کے ساتھ ٹکرا گئی۔ گاڑی کے ساتھ لگتے ہی وہ زمین پر گری تھی۔ بچی کے رونے کی آواز سے وہ جلدی سے ہوش میں آئی تھی اور اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آج نہ جانے اور کتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھنے لگی جب اسے ایسا لگا جیسے اس کی جان ہی نکل جائے گی۔ اس کے پیر میں اس قدر تکلیف تھی کہ تبھی کسی نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ تھام لو، ساری زندگی ساتھ لے کر چلوں گا۔ وہ اس آواز پر ایک دم چونکی تھی اور جیسے ہی جھٹکے سے نظریں اٹھائیں تو اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ تبھی پیچھے سے آتی تین موٹر سائیکلیں جن پر وہ آوارہ لڑکے بیٹھے تھے، ان کو دیکھتے ہی گوہر نے جلدی سے اپنا ہاتھ میراب کے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ گوہر نے جیسے ہی اپنے پیروں پر وزن ڈالا تبھی وہ اپنے پیروں پر وزن برقرار نہ رکھ سکی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی میراب نے اسے کمر سے تھام لیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تبھی میراب نے اس کے ہاتھ سے بچی پکڑ کر اسے سہارا دیا تھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی تھی۔ وہ آوارہ لڑکے میراب کو دیکھ کر بھاگ چکے تھے۔ وہ چور نگاہوں سے میراب کو دیکھ رہی تھی، لیکن میراب نے اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر گوہر کو لگا تھا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہے۔ وہ صوفے پر ٹانگ چڑھائے سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا۔ سامنے گھر کے تمام ملازم کھڑے تھے، چوکیدار بھی کھڑے تھر تھر کانپ رہے تھے، اور وہ اپنی بچی کو اپنی باہوں میں سموئے ایک کونے میں کھڑی خوفزدہ نگاہوں سے میراب کو دیکھ رہی تھی۔ تم لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ گھر سے باہر کیسے نکلی؟ سر، وہ میری آنکھ لگ گئی تھی، چوکیدار نے کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی میراب کا ہاتھ اٹھا تھا اور چوکیدار کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ بدبختو، میں سونے کے پیسے دیتا ہوں کیا تم لوگوں کو؟ کہا تھا نا کہ اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہوئی تو معافی نہیں ملے گی۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن تم لوگوں کو میری بات سیریس نہیں لگی تھی۔ اب اپنی سزا کے لیے تیار رہو۔ گوہر آنکھیں پھاڑے میراب کو دیکھ رہی تھی۔ سب ملازم وہاں سے جا چکے تھے، چوکیداروں کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا گوہر کے پاس آیا تھا۔ سزا تو اب تمہیں بھی بھگتنی ہوگی۔ ایک پولیس افسر سے نظریں چرا کر بھاگ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا؟ اب اپنی سزا کے لیے تیار رہو جانے من۔ آج رات بہت رنگین ہونے والی ہے ہماری۔ گوہر کی زبان کو تو جیسے کفل ہی لگ گیا تھا۔ اس کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ تبھی ایک ملازمہ آئی تھی اور اس کے ہاتھ سے اس کی بچی لے گئی، اور اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اس ملازمہ کو روک کر اپنی بچی کو پکڑ لے۔ اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی نظروں کے سامنے کیے وہ اس کے کان میں سور پھونک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آئی آوارہ لٹ انگلی سے پیچھے کیے وہ اسے گھسیٹنے کے انداز میں کمرے میں لے گیا تھا اور اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ نہیں، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسے مت کرو، تم میرے لیے نامحرم ہو۔ تبھی میراب نے غصے سے اس کے چہرے کو دبوچا۔ تم؟ لیکن خود کو کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ میراب نے گوہر کو جھٹکے سے خود سے دور کیا اور تبھی وہ کمرے سے جانے لگا جب گوہر کی آواز پر اپنی جگہ جامد ہو گیا۔ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو پھر کیوں مجھے زبردستی یہاں پر رکھا ہوا ہے؟ مجھے جانے دو۔ میراب نے خون آلود نگاہوں سے گوہر کی طرف دیکھا، جس سے گوہر بھی خوفزدہ ہو گئی۔ تبھی وہ انگلی اٹھا کر گوہر کی طرف دیکھنے لگا تھا، لیکن پھر سے خود کو بولنے سے روک گیا۔ شاید وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زبان سے گوہر کے لیے کوئی ایسا لفظ نکلے جس کو سننے کے بعد گوہر میراب سے شادی سے انکار کر دے۔ گوہر میراب کے لیے اب ایک ضد بن چکی تھی اور وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا، ورنہ نتائج کیا نکلتے یہ تو اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ ایس پی صاحب، ہماری بہو کو تلاش کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ دیکھیں مسٹر آن، ہم آپ کی بہو کو تلاش کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، لیکن آپ یہ تو بتائیں وہ تھی کیسی؟ ہمارے پاس اس کی کوئی تصویر بھی نہیں ہے۔ آن صاحب کے کہنے پر میراب نے حیرانگی سے آن صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ وہ آپ کی بہو تھی اور آپ کے پاس ان کی کوئی تصویر بھی نہیں؟ خیر، آپ تو سسر ہیں کہ آپ کے بیٹے کے پاس بھی اس کی کوئی تصویر نہیں؟ نہیں، اس کے پاس بھی اس کی کوئی تصویر نہیں۔ دراصل میری بہو کو تصویریں کھنچوانے کا شوق نہیں تھا۔ میراب کو مسٹر آن کی بچگانہ بات پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ خواہ میں میراب کا وقت ضائع کر رہے تھے۔ چلیں یہی بتا دیں آپ کی بہو کا نام کیا تھا، یا اب یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا نام زرتاشا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ جائیے، میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کچھ کرتا ہوں۔ کبھی میراب نے کسی کو فون ملایا، ذرا مسٹر آن پر کڑی نظر رکھو۔ وہ رات گئے گھر لوٹا تھا اور گھر میں ایک بچی کے رونے کا شور تھا۔ اس وقت تھکاوٹ کی وجہ سے اسے شور سے بیزاریت ہو رہی تھی۔ تبھی وہ آواز کے تعاقب میں چلتا گوہر کے کمرے تک پہنچا۔
दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी दरवाज़ा ना खुला तो वो फिक्रमंद होते हुए दरवाज़ा खोले कमरे में दाखिल हो गया था। कमरे में कोई मौजूद नहीं था। वो मासूम कली तनहा बेड पर लेटी रो रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ा था और उसे गोद में उठा लिया था। आज उसने इस बच्ची के नक्श गौर से देखे थे। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, अपनी माँ से कहीं ज्यादा। उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए ये बात कही थी। देखो तुम मेरी पार्टनर बन जाओ, क्राइम पार्टनर। वो मलिहा से इस तरह बात कर रहा था जैसे वो उसकी सब बातों को समझ रही हो। हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे, ओके। वो भी मलिहा के साथ बातों में मसरूफ था कि इतनी ही देर में वॉशरूम का दरवाजा खुला और वो अपने बाल टाल से सुखाते हुए बाहर निकली थी। तभी मीराब की निगाहें गौहर के वजूद पर ठहर गईं। वो जो बगैर दुपट्टे के फिटिंग में सूट पहने कयामत लग रही थी। वो किसी भी मर्द को अपनी तरफ माइल करने का हुनर रखती थी। तभी गौहर की निगाहें मीराब की निगाहों से टकराईं और फिर गौहर की चीखें पूरे मीराब हाउस में गूंज उठी थी। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। गौहर जल्दी से आगे बढ़ी थी और पास पड़ी कुर्सी से दुपट्टा उठा लिया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती किसी गैर लड़की के कमरे में बगैर इजाजत के जाते हुए? नहीं, तुम तो पुलिस इंस्पेक्टर को तो जैसे डिग्री शर्म बेचने के बदले मिलती है ना, बेशरम इंसान। वो एकदम जैसे फट ही पड़ी तो वो बहुत दिलचस्पी से गौहर को लाल पीला होते हुए देख रहा था। बस बस, जबान तो तुम्हारी शुरू से बहुत चलती है। मलिहा रो रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर यहाँ आ गया। तुम तो थी नहीं कमरे में, और वो मासूम बेहाल हो गई थी रोते हुए। मेरी बेटी है ना, रो रही थी तो रोने देते। तुम यहाँ क्यों आए? क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? रिश्ता भी बन जाएगा, फिक्र मत करो। कल तैयार रहना, तुम्हारी बारात लाऊंगा और फिर हमारी होगी सुहाग रात। वो एक उंगली गौहर के चेहरे पर मारते हुए शरारतन बोला था, लेकिन गौहर तो जैसे करंट ही लग गया था। इतना कहकर वो रुका नहीं और कमरे से बाहर चला गया। और वो आंखों में आंसू लिए अपने साथ होने वाले मीराब के रवैये को सोचने लगी थी। वो किचन में खड़ी मलिहा के लिए खाना तैयार कर रही थी कि ये अचानक अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा तो मीराब को खड़े देखकर वो एकदम से हैरान रह गई थी। उसके हाथ में लाल रंग का दुपट्टा था। ये सब काम करने के लिए मुलाजमा है। आगे बढ़कर उसके सर पर दुपट्टा देते हुए कहा, चलो बाहर, निकाह आया। इतना सुनते ही गौहर को लगा सातों आसमान उसके सर पर गिर पड़े। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती मुझसे निकाह? क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। बस जानता हूँ मैं इस मोहब्बत के बारे में। आज भी तुम उसके बारे में सोच रही हो जिसे तुम्हारी परवाह तक नहीं, जिसे तुम्हारी नहीं बल्कि जिसे उसकी अपनी औलाद की परवाह नहीं। गौहर ने बेयकीनी से मीराब की तरफ देखा था। क्या मतलब है इस बात का? इसके लहजे में आप मुझसे बात कर रहे हैं, इसी लहजे में जिस लहजे में तुम सुनने की आदी हो। अब चुपचाप ही दुपट्टा लो और बाहर आओ। मैं तुम्हारे मजीद नखरे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे नहीं करना आपसे ये निकाह। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, इसीलिए खामोशी से मेरा कहा मान लो। नहीं तो आप क्या करेंगे? नहीं मानती मैं आपका कहना। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ कि जिसको जिस तरह से चाहेंगे इस्तेमाल करें। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है? अगर तुम्हें मेरे साथ निकाह नहीं करना तो मुझे तुम्हारे साथ बगैर निकाह के भी रात गुजारने में कोई मसला नहीं। क्या आपने मुझे क्या समझ रखा है? ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मानती हूँ मोहब्बत में मारी गई हूँ, लेकिन क्या मैं आपसे शादी नहीं कर सकती? लेकिन वहाँ किसकी परवाह थी? तभी वो गौहर का हाथ था। मैं उसे घसीटते हुए टीवी लाउंज में ले आया था। मौलवी साहब निकाह पढ़ाएं। मैं नहीं करूंगी ये निकाह। वो मुसलसल अपना हाथ छुड़वा रही थी और चीख चिल्ला रही थी, लेकिन मेरा आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बेटा, ये निकाह तब तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक लड़की की रजामंदी ना हो। मौलवी साहब ने मीराब की तरफ देखते हुए कहा था। मौलवी साहब, आपने निकाह पढ़ाएं, ये निकाह कबूल करेगी। अगर तुमने निकाह कबूल नहीं किया तो याद रखना मैं मलिहा को जान से मार दूंगा। गौहर ने बेयकीनी से मीराब की तरफ देखा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरी बच्ची के साथ। मैं ऐसा ही करूंगा। मीराब ने उसके कानों में जैसे सीसा पिलाई पिघला कर डाला और फिर न जाने ना चाहते हुए भी उसने अपने दिल में एक गहरा राज छुपाए मीराब से निकाह कर लिया था। निकाह के दौरान मीराब के कुछ दोस्त शामिल थे। मीराब गौहर को छोड़ने अपने दोस्तों के साथ उन्हें पार्टी देने चला गया था। रात के वक्त दरवाज़ा खुला तो गौहर को लगा जैसे उसका वहम है। कमरे में नीम अंधेरा होने की वजह से वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। एहतियातन उसने मलिहा को अपनी बाहों में समो लिया था। वो बगैर चाप के गौहर के पास आया और जैसे ही उसके कांधे पे हाथ रखा तब गौहर के मुंह से मारे खौफ की एक चीख बरामद हुई थी। कौन है? गौहर, मैं हूँ मीराब। मीराब की आवाज़ पर गौहर ने जहाँ सुख का सांस लिया था वहीं से मीराब पर गुस्सा भी आया था। तभी वो झटके से बेड से खड़ी हो गई थी। ये कौन सा तरीका है? आप नहीं जानते कि किसी के कमरे में उसकी इजाज़त के बगैर नहीं आया जाता? कभी मीराब झूलते हुए गौहर के ऊपर गिरा। अरे अरे, आप खुद को संभालें, ये क्या कर रहे हैं आप? आप होश में नहीं लग रहे। वो तो जैसे एकदम बौखला गई। ये बदबू, आप नशा करके आए हैं? वो अपने मुंह पर हाथ रखती मीराब को सीधा करते 2 कदम पीछे हटी थी। हाँ, बस वो दोस्तों ने पिला दी। वो बहके हुए अंदाज में बात कर रहा था। गौहर को मीराब से खौफ महसूस हुआ। आप अपने कमरे में जाएं, आप होश में नहीं है। नहीं, मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। मीराब, अभी अपने होश में नहीं आप। मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ आती हूँ। वो खुद को संभालते हुए मीराब का हाथ थामे कमरे से बाहर ले जाने लगी।
जब मिराब ने गौहर को अपनी तरफ खींचा था, गौहर इस रफ्तार के लिए तैयार नहीं थी। तभी उसकी बाहों में गिर गई। मिराब जो अपने होश में नहीं था, गौहर के साथ जबरदस्ती करने लगा और फिर अपने सब हुकूक वसूल करता। वो गहरी नींद सो गया था। गौहर घुटनों पर सर रखे रो रही थी। सारी रात उसकी रोने में ही गुजर गई थी। चढ़ते सूरज के साथ उसने फैसला किया कि उसने एक ने कहा सोए हुए मीराब पर डाली और अपनी बच्ची को लिए घर से गायब हो गई थी। मिराब की जिस वक्त आंख खोली तो कमरे में कोई भी नहीं था। उसका सर भारी हो रहा था, इसीलिए वो बिस्तर पर गिर सा गया। होश में आते ही उसने पूरा घर छान मारा था, लेकिन गौहर से कहीं नजर नहीं आई थी। वो सब मुलाजमीन से पूछ चुका था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि गौहर कहाँ है। चौकीदार का कहना था कि रात के टाइम गौहर उन्हें दूध का ग्लास देने गई थी। चौकीदार काफी हैरान हुए थे, लेकिन गौहर ने ये कहकर उन्हें दूध का ग्लास दे दिया कि आप लोग सारा दिन हमारी खिदमत करते हैं तो कुछ हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपकी खिदमत करें। लेकिन वो दूध पीते ही चौकीदार गहरी नींद में सो गए। मेरा आप अपना सर पकड़कर बैठ गया। इस लड़की को आखिर मसला क्या है? हर दूसरे दिन घर से भाग जाती है। अब कहाँ तलाश करूं मैं इसे? वो कमरे में वापस गया और कमर पर हाथ रख के गहरी सोच में इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक मीराब को रात का सारा वाक़या याद आने लगा। नशा उतरा तो वो अपने होश को बैठा। उसे जैसे जैसे रात का वक्त याद आ रहा था, वैसे वैसे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था। ये मुझसे क्या हो गया? नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मीराब ने अपने सब दोस्तों को फ़ोन करके गौहर के पीछे लगा दिया, लेकिन 2 दिन होने को थे, गौहर का कुछ पता नहीं था। पिछले 5 महीने से हम मिस्टर ऑन की बहू को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बहू को कुछ पता नहीं चल रहा। हमारी टीम क्या कर रही है? सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक कांस्टेबल उठा था। मीराब जो अपना सर पकड़े बैठा था। सर, मिस्टर ऑन इसी होटल में है, मुसलसल किसी लड़की को घूर रहे हैं। मीराब ने अपने सर से हाथ पीछे किया था और जैसे ही कांस्टेबल के इशारे का ताक़ुब में देखा, तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा जहान उसके सामने ला के खड़ा कर दिया था, क्योंकि सामने गौहर अपने 8 महीने की बेटी के साथ खाना खा रही थी। तभी मीराब के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई। मीराब जैसे ही उठकर गौहर के पास जाने लगा, तभी मिस्टर ऑन गौहर के पास पहुंचे थे। मीराब दूर खड़ा ये सब देख रहा था। तभी मिस्टर ऑन गौहर के पास गए थे और उसके सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गए। उनके साथ उनका बेटा रिजवान भी था। गौहर इन दोनों को देखकर एकदम दंग रह गई थी। वो रात ने आंखें छोटी किए गौहर को देखा था। वो मिस्टर ऑन को जानती थी। क्या रिश्ता था उसका मिस्टर ऑन से? तभी मिस्टर ऑन ने एक कागज गौहर के सामने रखा, जिसको देखकर गौहर के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था और वो एकदम परेशान हो गई थी। तभी रिजवान उठा था और गौहर को बाजू से पकड़ते घसीटते हुए होटल से बाहर ले जा रहा था। मिस्टर ऑन ने मलिहा को एक नज़र देखा और फिर सर झटकते उसे तनहा वहां पर छोड़कर होटल से बाहर निकल गए थे। गौहर मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकाला था। मीराब कैसे बर्दाश्त करता कि कोई गैर महरम उसकी बीवी को छू रहा था। तभी वो भागने वाले अंदाज में मलिहा के पास पहुंचा, जो मुसलसल रो रही थी। उसने मलिहा को अपनी गोद में उठाया और उसे प्यार करने लगा। तभी उसने अपनी पूरी टीम को मिस्टर ऑन के पीछे लगा दिया। ये कोई खामोश इलाका था। हर तरफ सुनसान बागात थे और ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ किसी जीरू का बसेरा नहीं था। तभी एक कारखाने से किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मीराब की टीम कारखाने के पास जाकर कारखाने को अपनी लपेट में ले चुकी थी। तभी मीराब और कुछ पुलिस अफसर कारखाने में दाखिल हुए, जहाँ पर गौहर को बांधा गया था और उस पर जुल्म की इंतहा कर दी गई थी। उसके वजूद पर नील के निशान थे। मीराब जल्दी से आगे बढ़ा था और गौहर को खोलने लगा, लेकिन वो अपने होश में नहीं थी। तभी बेहोश हो गई थी। मीराब ने उसे गोद में उठाया। तभी पुलिस अफसर रिजवान और मिस्टर ऑन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गए थे। मीराब को अब गौहर के जागने का इंतजार था। मीराब तजब्जुब का शिकार था कि आखिर गौहर का मिस्टर ऑन के साथ क्या ताल्लुक था। मलिहा गौहर को आहिस्ता आहिस्ता होश आ रही थी। गौहर, आंखें खोलो, आंखें खोलो गौहर। गौहर गौहर एक झटके से उठ बैठी थी। मेरी बेटी कहाँ पर है? मेरी वो बौखलाई हुई थी। गौहर, मलिहा बिल्कुल ठीक है। तुम ठीक हो ना गौहर? गौहर ने हवास बाख्ता होते मीराब की तरफ देखा और फिर वो घुटनों पर सर रखकर फूट फूट कर रोती थी। उसकी किस्मत उसे कहाँ ले आई थी? एक गलत कदम और उसकी जिंदगी तबाह हो गई थी। मुझे बताओ, तुम्हारा मिस्टर ऑन के साथ क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उस जानवर के साथ। हैवान है वो, हैवान। जी तो चाहता है कि उसको जान से मार दूं और उसके बेटे को भी। रिलैक्स, आराम से, काम डाउन। हुआ क्या है मुझे वो तो बताओ। क्या कर लेंगे आप? बोले, क्या कर लेंगे आप? आप कुछ भी नहीं कर सकता उसे कोई। ऐसे हैवान जब पैसों के सर पर पूरी दुनिया में दनदनाते फिरते हैं, तो आप क्या, आप जैसे बहुत सारे लोग उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ऐसे हैवान जब पैसों के सर पर पूरी दुनिया में दनदनाते फिरते हैं, तबाह होती हैं तो हम जैसी लड़कियां, जिनको मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनको नोच लिया जाता है। कसूर क्या था मेरा? मैंने मोहब्बत की थी, एतबार किया था। ये दुनिया एतबार के काबिल ही नहीं। फिर आप खामोशी से गौहर को सुन रहा था। वो चाहता था कि गौहर अपना गुबार निकाल ले। औरत जात का तो तमाशा बना रखा। कठपुतली समझते हैं औरत को कि जिससे दिल चाहा, जब दिल चाहा खेल लिया, और जब दिल चाहा तो किसी कूड़ेदान की तरह उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन अब की मर्तबा मैं किसी को माफ़ नहीं करूंगी। वो अपने हवास में नहीं लग रही थी, इसीलिए मीराब उसको अंदर टोकना मुनासिब नहीं समझा। वो चाहता था कि इसके अंदर जो लावा पक रहा है वो बाहर निकल जाए, लेकिन
वो नहीं जानता था कि गौहर की सब बातें सुनने के बाद, उसका माजी जानने के बाद मीराब में इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि वो खुद को सहारा दे सके। वो खुद को मुजरिम समझने लगेगा। गौहर तो अपने माजी में खो गई थी। उठ जाओ गौहर, सुबह हो गई है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? अम्मा उठ रही हूँ ना। और कितनी देर लगाओगी लड़की? उठ जाओ, आज तुम्हें लड़के वाले भी देखने आ रहे हैं। तभी गौहर का रंग सफ़ेद पड़ा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अम्मा, मैंने कितनी दफ़ा कहा है ना कि मुझे शादी नहीं करनी, फिर आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? कसम खुदा का, जो मुंह में आता है ऑल फॉल बक देती हो। मैं तुम्हें सारी जिंदगी तुम्हारे ये नशई बाप के सर पर छोड़ दूं, जिसको अपनी होश तक नहीं है, वो तुम्हारी कफालत करेगा। देखो बीबी, अपने दिमाग को तैयार रखो, मैं बहुत जल्द तुम्हारी शादी कर दूंगी। मेरे सर से तुम्हारा फर्ज अदा हो तो सुकून से मैं भी मर सकूंगी। नसीम बेगम अपने हालात की मारी हुई गौहर पर गुस्सा करने लगी थी। गौहर की आंखों में आंसू आए थे। नसीम बेगम के जाते ही गौहर ने अपने तकिए के नीचे से फ़ोन निकाला। फ़ोन उठाओ मेरा। वो किसी को तीसरी मर्तबा फ़ोन मिला चुकी थी, लेकिन कोई भी जवाब ना मिलने पर उसने मायूसी से फ़ोन अपने बिस्तर पर फेंक दिया था। अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाए रोने लगी थी। तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी रिजवान। मैं किस तरह किसी और से शादी कर सकती हूँ? हमने जो इतने साल एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, तुम्हारी कुर्बत, मेरा वजूद, तुम्हारी बाहों में, ये सब कैसे भुला दूँ? और कौन मुझे कबूल करेगा? तभी वो वॉशरूम में बंद हो गई थी। उसकी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब सी रहने लगी थी। वो रिजवान को कई मरतबा कह चुकी थी कि डॉक्टर से एक दफ़ा मुआयना करवा लेना चाहिए, लेकिन रिजवान का कहना था तुम्हारा वहम है, कमज़ोरी हो गई है, इसीलिए तुम्हारी तबीयत ख़राब रह गई है। लेकिन गौहर का दिल तो अजीब से ख्यालात बुन रहा था। आज उसका फैसला था कि वो जो खुद डॉक्टर के पास जाएगी। नबीला, तुम चलोगी ना मेरे साथ डॉक्टर के पास? गौहर प्लीज़, मुझे सबसे दूर रखो, मेरे पेरेंट्स की बहुत इज्जत है इस शहर में। मुझे तो अब अफसोस होता है कि मैंने तुम जैसी लड़की से दोस्ती ही क्यों की। ये तुम क्या कह रही हो नबीला? ठीक ही तो कह रही हूँ। मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मेरी दोस्ती तुम जैसी लड़की के साथ है तो वो मेरा यूनिवर्सिटी आना ही बंद कर देंगे। मुझे अपना करियर बनाना है, इसीलिए तुमसे दरख्वास्त है कि आज के बाद मुझसे मुलाकात करने की कोशिश मत करना। यही समझना कि कभी हमारी दोस्ती थी ही नहीं। गौहर और नबीला की दोस्ती पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर थी। दोनों का उठना बैठना, आना जाना एक साथ होता था। उनकी गहरी दोस्ती को बहुत सी ऐसी निगाहें भी देखती थी जिनमें सिर्फ हसद भरा होता था। नबीला जा चुकी थी। गौहर को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी पुरानी दोस्त उसका इतनी जल्दी साथ छोड़ देगी। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? और ये रिजवान फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? वो आंसू बहाती हुई यूनिवर्सिटी से निकली थी। खुद ही अब कुछ करना था। तभी वो डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर, मैं ठीक तो हूँ ना? डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखते हुए हैरानगी से अपने सामने बैठी लड़की को देखा था। आप मैरिड? गौहर नजरें चुराने लगी। वो डॉक्टर को क्या जवाब देती? अगर सच बताती तो यकीनन डॉक्टर उसको बातें सुनाती, इसीलिए उसे झूठ बोलना पड़ा। जी, मैं मैरिड हूँ। डॉक्टर ने सुख का सांस लिया। आपके हस्बैंड कहाँ पर हैं? मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। वो तो अभी किसी काम में मसरूफ़ हैं। आप मुझे बताएं, सब ठीक है ना? देखिए, आप प्रेग्नेंट हैं और आपको दूसरा महीना चल रहा है, लेकिन आपका हमल बहुत कमज़ोर है। आप भी काफ़ी कमज़ोर हैं। मैं कुछ विटामिन की दवाइयाँ लिख रही हूँ, इनके साथ साथ अपनी खुराक का भी ख्याल रखें, वरना आपकी या बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर तो अपने ध्यान में बोलती जा रही थी, साथ ही साथ कागज़ पर हाथ चला रही थी, लेकिन गौहर जिसे लगा था कि सातों आसमान उसके सर पर गिर गए हैं। वो तो एकदम हवास बाख्ता हो गई थी। डॉक्टर के होंठ हिलते दिखाई दे रहे थे, लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। जो कुछ भी सोचने समझने से कासिर थे। डॉक्टर ने कब उसे कागज़ हाथ में थमाया और कब वो अस्पताल से बाहर निकली, उसे कुछ पता नहीं था। होश तो उसे तब आया था जब वो किसी की गाड़ी के साथ टकराने लगी। अंधी हो गई हो क्या? ध्यान से देखकर नहीं चल सकती? मेरी ही गाड़ी मिली है मरने के लिए। वो खामोशी से उस लड़के को देख रही थी जो गौहर पर चिल्लाता हुआ वहां से अपनी गाड़ी भगा ले गया था। वो फुटपाथ पर बैठी रोने लगी थी। ये क्या हो गया मुझसे या अल्लाह? ये मैंने क्या कर दिया? वो अभी भी मुसलसल रिजवान को फ़ोन कर रही थी, लेकिन रिजवान फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब इसको क्या मसला हो गया? ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं क्या करूं? अम्मा तो मेरी शादी करने के दर पर है, और मैं कब तक उसको छुपाऊंगी? मुझे कुछ करना होगा। मुझे रिजवान से मिलकर उससे समझाना होगा कि वो अपने घर वालों को मेरे घर भेजे ताकि जल्द से जल्द हमारी शादी हो सके। गौहर खुद को संभालती हुई आंखें साफ करती रिजवान के घर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। रक्शे में बैठते हुए रिजवान के घर के बाहर थी, जहाँ वो अक्सर गौहर को अपने साथ लाया करता था और वहाँ पर ही वो अपनी रातें रंगीन किया करता था। वो मुसलसल दरवाज़ा खटखटा रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला और अपने सामने एक औरत को खड़ा देखकर गौहर काफ़ी हैरान हुई। जी, किससे मिलना है आपको? वो अंदर रिजवान, ये रिजवान का घर है ना? नहीं, ये घर रिजवान का नहीं है। रिजवान तो मेरे बेटे का दोस्त है, लेकिन वो एक नंबर का घटिया इंसान है, इसीलिए मैंने अपने बेटे को उससे दूर रखने के लिए कनाडा भेज दिया। न जाने कहाँ से वो हमारे पीछे पड़ गया। आस पड़ोस में बता रहे हैं कि वो हम 3 महीने के लिए बैरून मुल्क गए थे और वो रिजवान किसी लड़की को यहाँ पर लेकर आता था। इतना कह के वो औरत गुस्से से दरवाज़ा बंद करती अंदर चली गई। उसने तो इतना भी पूछने की जहमत नहीं की कि गौहर का रिजवान से क्या ताल्लुक था। गौहर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए घर आई थी। गौहर, खाना लग गया, आ जाओ खाना खा लो।
कितनी दफ़ा कहा है तुम्हें कि इसको घर पर बिठाओ, कोई चांद चढ़ाएगी तभी तुम भी इसको बाहर भेजने से बाज आओगी। अपने बाप की आवाज़ पर उसने गुस्से से अपने बाप की तरफ देखा, जो कमा तो नहीं सकता था लेकिन नसीम बेगम पर और गौहर पर जुल्म सारे कर सकता था। अब ऐसी क्या देख रही है? बाप की तरफ देख रही है। नसीम, ये तरबियत की है तूने इसकी कि कैसे बाप को घूर रही है? तुम मेरे बाप नहीं, मेरे बाप को मरे 10 साल हो गए। तुम जैसा घटिया इंसान मेरा बाप नहीं हो सकता। अब्बास साहब गुस्से से गौहर की तरफ भागे। इससे पहले कि वो गौहर पर हाथ उठाते तभी नसीम बेगम ने उसे कमरे में भेजा था। ये क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटी पर हाथ उठाएंगे? इसे कहो मेरी नज़रों के सामने मत आया करे। वो गुस्से से तुनफुन करती कमरे में चली गई थी। बेड पर बैठती उसने अपने हाथों में अपना सर गिरा लिया। उसे दोबारा रिजवान को फ़ोन करने की कोशिश की थी। वो हकीकत का पता लगाना चाहती थी। कई दिन ऐसे ही गुजर गया लेकिन रिजवान से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। वो बिल्कुल चुप रहने लगी थी। नबीला ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। वो यूनिवर्सिटी में बैठी थी जब अचानक रिजवान का फ़ोन आया। फ़ोन की तरफ देखकर उसने जल्दी से फ़ोन उठाया था। तुम कहाँ पर हो? कितने दिनों से मैं तुमसे राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अम्मा अब्बा मेरी शादी करना चाह रहे हैं। देखो गौहर, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरे अम्मा अब्बा इतनी जल्दी शादी के लिए नहीं मानेंगे। अगर तुम्हारे अम्मा अब्बा बज़िद हैं तो तुम उनका कहा मान लो। बकवास कर रहे हो तुम, जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। देखो रिजवान, मैं तुमसे मिलकर तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझसे मिलो, मुझसे बात तो करो। गौहर फ़ोन पर गुस्सा करके बात को बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने मिलना ही मुनासिब समझा था। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज देता हूँ, कल शाम वहाँ पर ही आ जाना। शाम को नहीं, यूनिवर्सिटी से सीधा आऊँगी। ठीक है। इतना कहकर दोनों तरफ फ़ोन बंद हो गया। बहुत जिद करने के बाद रिजवान आखिरकार मान ही गया। अगले रोज जब वो रिजवान से मिलने गई तो जगह देखकर गौहर परेशान हो गई थी, क्योंकि वो कोई खंडरात लग रहे थे। वो धूप निकलती, अपना गला साफ करती, घबराती हुई आगे गई थी। सामने ही उसे रिजवान नजर आया। उसकी जान में जान आई थी। बोलो, क्या कहना चाहती हो? तुम्हें इससे ज्यादा खौफनाक जगह और कोई नहीं मिली मुझे बुलाने के लिए? गौहर को रिजवान पर बहुत गुस्सा था। गौहर, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैं यहाँ तुमसे जगह के बारे में बातें करने नहीं आया। रिजवान, मुझसे शादी कर लो। अपने घर वालों से बात तो करो, वो यकीनन मान जाएंगे। ये कैसी बेवकूफ़ाना बातें कर रही हो गौहर? मेरे ऊपर अभी 2 बड़े भाई बैठे हैं, वो किस तरह मान जाएंगे? और तुम अचानक इतनी जिद क्यों कर रही हो? आगे तो कभी तुमने इतनी जिद नहीं की। हाँ, क्योंकि आगे मैं अकेली थी और अब हमारा बच्चा मेरे साथ है। मैं किस तरह सब कुछ छुपा के रखूंगी? आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा। इतनी बदनामी होगी मेरी, मेरे माँ बाप की। लोग मेरे मरे हुए बाप पर थूकेंगे। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? गौहर एकदम चीखी। आवाज़ नीची रखो, ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ इतना चीख रही हो। रिजवान एकदम धाड़ा। गौहर, रिजवान के धाड़ने पर सहम गई। ये तो वो रिजवान नहीं था। और कौन से बच्चे की बात कर रही हो? न जाने किसका गुनाह मेरे सर डाल रही हो। रिजवान, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते हो कि हम कई मरतबा बहुत कुछ हुआ। ये वही बच्चा है जो हमारी मोहब्बत की निशानी। देखो गौहर, ये सब मैं नहीं जानता। तुम ये बच्चा ज़ाया करवा दो। तुम्हारे माँ बाप जहाँ पर कहते हैं वहाँ शादी कर लो। क्या? कौन कबूल करेगा मुझे इस हालत में? शादी की रात ही वो मुझे तलाक दे देगा। कहाँ जाऊंगी फिर मैं? रिजवान ने गहरा सांस लिया था। तो तुम क्या चाहती हो? क्या करूँ मैं? कुछ भी करो रिजवान, लेकिन मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। मैं बच्चा गिरा भी दूँ तब भी मैं किस तरह जिंदगी गुजारूंगी? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ रिजवान, खुदा के लिए मेरी मदद करो। रिजवान एकदम खामोश हो गया। ठीक है, फिर एक ही रास्ता है, अगर तुम मान लो मैं सब कुछ मानूंगी। तुम बोलो तो सही, हम भाग कर शादी कर लेते हैं। माँ बाप का क्या है? वो तो फिर कल को राजी हो ही जाएंगे। गौहर रिजवान की बात सुनकर 2 कदम पीछे हट गई। ये क्या कह रहे हो तुम? भाग कर शादी? मेरी माँ तो जीते जी मर जाएगी। अरे मैं उसका आखिरी सहारा हूँ। अगर आखिरी सहारा थी तो फिर मेरे पीछे क्यों आई थी? बोलो। रिजवान, मत भूलो कि मोहब्बत का इजहार तुमने पहले किया था। अपनी मोहब्बत में तुमने मुझे फंसाया था और अब तुम सब कुछ मुझ पर डाल रहे हो। और फिर ये सब, ये बच्चा करते हुए तुमने क्यों नहीं सोचा? अरे इस बच्चे को बार बार अंदर क्यों लेकर आ रही हो? मैं क्या जानूँ ये बच्चा मेरा भी है या बस? रिजवान, अब एक लफ्ज़ और